Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. नमस्कार मैडम। नमस्कार, नमस्कार भाई, नमस्कार, Namaskar, ma'am. नमस्कार, Namaskar, madam. नमस्कार जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. The topic of presentation is curriculum design. आदाब सर, आदाब। आदाब अर्ज है। आप शुरू कर दीजिए। How to develop curriculum, curriculum design, how to develop the curriculum. Okay, madam, now the floor is yours. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. First, I pay my regards to Professor Vijaypur, sir, giving me this opportunity to interact with the young minds, especially in such a burning topic that is related to curriculum designing. And I also pay my thanks to Director MMTTC. So good afternoon, all my dear participants. Namaskar, Adab. I am Professor Nasreen from Department of Education, Aligarh Muslim University, Aligarh. The topic on which I am going to deliver the lecture, as the sir told right now, it is curriculum development and design. So let me start my lecture by this PPTs. I'm showing this. Please wait for 1 minute only. I'm joining this. So the PPT is visible? Yes, madam. Yes.
Okay, Yes, thank ma'am. you so much. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Now see, before going in details about the curriculum process, it is very essential to know about the term curriculum. Curriculum term has been derived from a Latin word which means C-U-R-R, cure. Somewhere it has been written as C-U-R-R-E, cure. And somewhere it is cure, C-U-R-R. The meaning of curriculum is that a way or as a runway where a horse run to achieve a certain kind of purpose, or having a race running in a circle and reached at a point where the race ends. Similar case is there, like in higher education institution, the teacher starts running at a point, that is objectives, and passing through this circle and passing through several procedures, he ends to a point that is known as evaluation. So in general, we can say that curriculum is a process from where a point, that is objectives, a teacher start running this point and ends to a point on the same circle, ends to the circle with the evaluation. Up now the curriculum has been defined by different authors in different way, that I have taken from different sources, the definitions. Say for example, in 2004, which says that it is a well-defined and prescribed course studies. So no doubt that it is a prescribed course, no doubt it is a well-defined terms, and it given a level of education, and it is predetermined subject matter in a planned sequence of experiences. All the experiences that the curriculum has to provide is planned, and that at the end leading to certifiable completion. Certifiable means that after qualifying the course, we have to provide certificate to our students. So in this way, what is definition of curriculum? The curriculum is a planned, the curriculum is a systematic, the curriculum is having a sequence of experiences that must lead to certified or to qualify certain course, that through which we provide certificate to our students, just to show that they have completed this course. So this definition is good definition that says about the curriculum. But next definition that I have written, 2017, that also says that it is about the project-based inquiry, where we have collaboration and assessment that measure real-world competence. So no doubt, the curriculum, as said by Helvovich, is really a planned exercise, but no doubt it is based on activity. It is based on collaboration with student, with teacher, teacher with principal, with head of the department, and other dean, registrar, vice chancellor in higher education institution, but in case of a school, it is related to teacher and principal. And assessment is also there, that measures that really the student is able to give the certification, or is there need to improve the performance of the students. So this is why Darling Hammond. Another curriculum worker in 2018 says that an authentic curriculum should empower learners to solve unpredictable global challenges, not just standardized content. That is also saying that what kind of challenges a student find
across the globe. That challenges must be recognized and identified by the teacher and the curriculum workers, and a student should be able to solve these kind of problems also. So this definition is saying that we prepare the students to face the challenges. In 1964, Indian Education Commission, that is also called as Kothari Commission. This commission was the unique kind of commission because it covers all levels of education, that is primary education, middle education, and the higher education. So this covers all the levels of curriculum, and it says that curriculum does not mean only the academic subject traditionally. Generally, we say that the curriculum is what? That the list provided by the institution to the teacher, and teacher has to complete this. No, this is not the way to define the curriculum, because it includes the totality of experiences that a people receives through the manifold activities that go inside the school and outside the classroom also. Outside the classroom, library, laboratory, workshop, playground, and in the numerous informal contacts between teacher and students. So this is a comprehensive definition of curriculum that says that never think that curriculum is a list of curriculum that is provided by the teacher to the students just to go through these topics, and we will take a test. After qualifying the test, you will enter in the next class. No. The Education Commission or the Kothari Commission says that curriculum is the total experiences of all the experiences, totality of experiences that a student receive inside the classroom as well as outside the classroom. So outside the classroom, library, classroom, laboratory, workshop, etc. So in education, it is generally identified with a course of studies or list of subjects prescribed for a course. In fact, a list of subject forms only a part of the curriculum and it does not constitute the whole of it. So here, the another word syllabus also attracts our attention, that what is difference between curriculum and syllabus. Curriculum में और syllabus में क्या फर्क होता है? So, syllabus is a list of subjects. आपको कौन से पेपर पढ़ाए जाएंगे, कौन से पेपर आपको क्लास में पढ़ाए जाएंगे. This is syllabus, and each paper contains so many topics. That is syllabus. But syllabus is the part of curriculum, but curriculum is not syllabus itself. It is a comprehensive term that includes total situation, total experiences that a student receives in the classroom and outside the classroom also. Now see, these three terms are also concerned with the curriculum. First is curricular activities, another is co-curricular activities, and third one is the extracurricular activities. Curricular activities are those activities that are directly related to your topic. Say, for example, you are teaching a topic in a science, or in any subject that you may take into consideration. In education, you are teaching, say, for example, pedagogies. So what happens that the topic, when you cover the topic, after that, a student comes to you and says that I have written these all pedagogies in that way, in a creative way. And everyone has its own style of writing. So he is showing you. So you says that yes, really wonderful, you have written that I have taught in the classroom. So what is this? This is creative writing. Creative writing is presenting with the certain kind of points, cartoons are also there, or pictures are also there, and certain kind of examples are also there. So what it is creative writing when the topic taught by you elaborated by the students in another way or in a creative manner. So this is known as curricular activities. So what I want to say, the topic
that you have taught in the classroom is being elaborated by the student in her or his own style and presented in such a way that it becomes easier for the students also. So this is a kind of writing. This is known as creative writing or the co-curricular activities, curricular activities. Sometimes it happens that the students are not coming in the classroom, attendance is very low, but you are going through the curriculum and you are saying that I am going methodically. No problem is there and I am taking class on time and nothing, any kind of hindrances are there, but the students are not taking interest because they are having self-study and they only prefer to go through the prescribed book. आपने जो क्लास में किताब बताई उन्होंने वो ले ली और उस टॉपिक को उन्होंने उस किताब से पढ़ लिया, तो ये क्या है, ये सेल्फ स्टडी। इसी तरीके से कोई एक्सपेरिमेंट अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड क्लास में होता है या कोई प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड होता है तो ये क्या है, ये करिकुलर एक्टिविटीज कहलाती हैं। इसको अगर हम एक सेंटेंस में डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, द एक्टिविटीज दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक्स that is being taught by the teacher in the classroom to cover the syllabus. So this comes under the head of curricular activities. दूसरा जो है वो co-curricular activities होता है। Co-curricular activities are concerned with the academic discussions, debates, participation in symposium, panel discussion in seminar. अब इसमें देखिए क्या है कि किसी भी टीचर ने अगर क्लास में किसी बर्निंग टॉपिक पे, जो भी टॉपिक चल रहा है आजकल, मान लीजिए आजकल जो टॉपिक्स चल रहे हैं, ईरान इराक का वॉर चल रहा है और साइंटिफिक भी हमारे अविनाश मिश्रा गए हुए हैं स्पेस में, ये कोई सा भी एक बर्निंग टॉपिक ले लिया और उन्होंने उसको डिस्कशन किया और किसी टॉपिक पे डिबेट कराई, कोई भ्रष्टाचार जैसे करप्शन है या बैंकिंग मैनेजमेंट है, एनी टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स और उस पर उन्होंने डिबेट करवाई, वुमेन एम्पावरमेंट है, तो ये क्या है, ये को करिकुलर एक्टिविटीज कहलाती है। इन एक्टिविटीज को हम क्यों करते हैं, द रीजन बिहाइंड इज दैट वी वांट टू डेवलप द स्टूडेंट्स पर्सनालिटी। और आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है कि देयर शुड बी अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। होलिस्टिक कब हो सकता है, जब हम उसके तीनों डोमेन्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर पर ध्यान दें। कैसे दे सकते हैं कि कॉग्निटिव तो हमने उसका करिकुलर एक्टिविटी से एनरिचमेंट कराया, अब अफेक्टिव जो है उसका इंटरेस्ट अगर हमको डेवलप कराना है तो हमने कुछ और एक्टिविटीज कराई जो एकेडमिक डिस्कशन है, डिबेट्स है। और साइकोमोटर जब हम उसको राइटिंग लिखने के लिए देते हैं या हम उससे कोई काम कराते हैं, यानी स्किल ओरिएंटेड पर अगर आप क्लास में कराते हैं तो वो क्या है, वो साइकोमोटर डोमेन से कंसर्न हो जाता है। सो द co-curricular activities are activities that are not directly related to the curriculum or the syllabus of the students, but they enhances the cognitive, affective and psychomotor development of the students. And these are academic discussions, debates, participation in symposium, panel discussion, seminar, etc. तीसरी जो एक्टिविटी है वो क्या है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से फॉर एग्जांपल देयर विल बी स्पोर्ट मीट्स इन द क्लास, इन द स्कूल, इन द कॉलेज, या सेलिब्रेशन है किसी महात्मा का, किसी ग्रेट पर्सनालिटी का भाई बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ organizing such kind of festivals, such kind of field trips, sports meet, that come under the head of extracurricular activities. Now the question is that why we are arranging these all extracurricular activities. The reason is that we want to familiarize our students with the national civilization and culture of our country also.
So it is very essential that such kind of extracurricular activities should take place in the college. So extracurricular activities has its own importance to make the students Indianized. माइक अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज. किसी का माइक अनम्यूट है. Please mute your mic. अपना mic mute करिए please. So these extracurricular activities are concerned to familiarize the students with Indian culture and civilization. Now see what are the correlates of curriculum. See, पूरा हमने अभी आपसे कहा था ना कि एक साइकिल होता है जिसमें एक पॉइंट से टीचर शुरू करता है और एक पॉइंट पे आकर उसी पॉइंट पर आकर खत्म भी करता है. तो ये पूरा साइकिल है जो आपको मैं दिखा रही हूँ. सबसे पहला इसमें ऑब्जेक्टिव्स है, दूसरा इसमें कंटेंट है, तीसरा लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, चौथा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है और पांचवा इवैल्यूएशन. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव. आपको करिकुलम फ्रेमिंग डिजाइनिंग आनी भी चाहिए क्योंकि आप टीचर हैं और आप ही करिकुलम को ऑपरेट करते हैं. सो यू मस्ट नो हाउ टू डिजाइन अ करिकुलम. किसी भी करिकुलम को व्हेन वी फ्रेम एनी करिकुलम वी डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स. Objectives are that particular components of a curriculum that we have to achieve at the end of the cycle. जो हमें अचीव करना है. से फॉर एग्जाम्पल मैं साइंस की टीचर हूँ. सो आई formulated the objectives that I want to develop scientific knowledge among the students. तो ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है मेरा कि मैं बच्चों में साइंटिफिक नॉलेज डेवलप करना चाहती हूँ. अब इन ऑब्जेक्टिव्स को जब हम अपने टॉपिक से कोरिलेट करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक का ज्ञान, पर्टिकुलर टॉपिक का नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं. जैसे मैंने अभी आपको साइंस का एग्जाम्पल दिया. सो साइंस में मान लीजिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है. सो व्हाट विल बी द नॉलेज दैट आई वांट टू डेवलप नॉलेज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स अमंग द स्टूडेंट्स. Similarly, you have so many topics and the topics related to topic you have to formulate the objectives. अब क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स भी दो तरीके के होते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. द फर्स्ट वन इज जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू topics that comes under that particular subject. जनरल ऑब्जेक्टिव्स वो है जो हमारे विषय से संबंधित है और विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हमारे उस विषय में आने वाले टॉपिक से रिलेटेड है. जैसे मैंने अभी आपको साइंस का एग्जाम्पल दिया, तो साइंस का जो जनरल ऑब्जेक्टिव है, जो सामान्य उद्देश्य क्या है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को साइंस की नॉलेज देनी है और उस नॉलेज के साथ साथ हमें उनमें एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना है. तो जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में चले जाते हैं, हम लोग कहते हैं ना ये साइंटिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल साइंस में डॉक्टर बन सकते हैं. तो एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? मेडिकल कॉलेज में देखिए आप डिफरेंट स्पेसिफिकेशन हो जाता है. साइंस का भी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है, फिजिक्स में भी कई स्पेसिफिकेशन है, केमिस्ट्री में भी कई स्पेसिफिकेशन है. तो एक जनरल ओवरऑल गोल क्या है? वो हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का. लेकिन जब हम उस सब्जेक्ट में डिफरेंट टॉपिक्स को लेते हैं तो उन टॉपिक से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. We have divided these objectives into two. The reason behind is that what kind of development we want to see in our students that should be specified to the subject. जैसे मैंने कहा कि साइंस पढ़ के बच्चे साइंटिस्ट बन जाएंगे, मेडिकल कॉलेज से में पढ़ के डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के इंजीनियर बन जाएंगे एंड सो ऑन. तो ये ऑब्जेक्टिव्स की बात रही.
ऑब्जेक्टिव्स को बनाने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए हमें कई बेसिस, कई आधार की भी जरूरत पड़ती है। कैसे? से फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज फिलोसफिकल ऑब्जेक्टिव। फिलोसफिकल ऑब्जेक्टिव सेज फिलोसफिकल बेसिस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फिलोसफिकल बेसिस कहते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारे देश की फिलॉसफी से कोरिलेट होने चाहिए। यानी हम जिन दर्शन पे, जिस फिलॉसफी पे वर्क कर रहे हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक फिलॉसफी पे वर्क करते हैं। हम कहीं पे भी कोई सख्ती नहीं करते, स्ट्रिक्ट नहीं है। हमारे बच्चों के साथ फ्लेक्सिबिलिटी है, वो हमसे पूछ सकते हैं, हम उनसे अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। So what kind of philosophy prevails in the society that is also implemented in the colleges? That is known as philosophical basis of objective. Say for example, you see the idealism, naturalism, pragmatism. आप देखिए कि जो आइडियलिज्म था वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। जो गुरु ने कहा, गुरु को उसे पूरा करना होता था और शिष्य को उसे पूरा करना होता था। Say for example, one story is also there related to अर्जुना, कि अर्जुन के जो गुरु थे वो एक बार अपनी कुटिया को छोड़ के मार्केट चले गए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम्हें इसकी देखभाल करनी है। तो अर्जुन ने कहा जी मैं जरूर करूंगा, और गुरु जी चले गए। लेकिन उसके बाद इतनी तेज पानी आया कि पूरी कुटिया जो थी वो पानी कुटिया की तरफ बह रहा था। तो अर्जुन उसमें लेट गए एंड बॉडी वाज कवर्ड विद मड एंड वाटर। तो लेकिन उन्होंने उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स हम जब देखते हैं वो आइडियलिज्म के हैं, जहाँ पे जो कुछ भी गुरु कहते थे शिष्य को उसको पूरा करना होता था। नेचुरलिज्म में क्या कहा है? नेचर और चाइल्ड को जोड़ा है, और वो कहता है कि आप अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ नेचर, जो हमारी प्रकृति के नियम है, आप उसके अनुसार बच्चे का विकास होने दीजिए। वहां पे कोई भी सख्ती नहीं है। और इसी तरह से प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है कि जो हम कुछ आंखों से देखते हैं, जो कुछ भी हम कहते हैं कि ये सच है, और एक्सपेरिमेंटेशन से जो कुछ भी प्रूव होता है वही हमारी नॉलेज है। सो वॉट एवर द फिलोसफी वाज देयर these ages, the same philosophy was followed in the institution. Similarly, we have democratic kind of philosophy where the student and teacher is free to or having equal participation in teaching learning process. Therefore, the philosophy is that the spaces should be giving to ask the questions, spaces should be giving to develop the personality of the students as I through the co-curricular activities and extracurricular activities. So we have a flexible kind of curriculum. तो हमें यहाँ पे उस फिलॉसफी को ध्यान रखते हुए अपने करिकुलम की डिजाइनिंग करनी होगी। दूसरा जो होता है वो सोशियोलॉजिकल बेसिस होते हैं। सोशियोलॉजिकल बेसिस का मानी होता है कि समाज को क्या आवश्यकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी दैट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जैसे एक वक्त था कि कंप्यूटर किसी को नहीं आता था, लेकिन आज आप रेलवे स्टेशन पे भी कंप्यूटर को देखेंगे, आप पोस्ट ऑफिस में भी कंप्यूटर से ही काम हो रहा है। सो व्हाट इज द नीड? द नीड इज दैट आवर स्टूडेंट शुड बी कंप्यूटर लिटरेट। डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट किया जा रहा है। उसका रीजन क्या है कि समाज को हम डिजिटल लिटरेट की जरूरत है, इसलिए हम उन सब्जेक्टों को अपने करिकुलम में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा कि बीए की क्लास में एनवायरमेंटल एजुकेशन कंपल्सरी बन गया। So if this subject is compulsory, the reason behind is that the environment is going deteriorated every day, and it is need that the student should do something for the environment, and they should be identify the kind of problems that generated by us or by the public,
and we are facing lot of problem like greenhouse effect and like ozone depletion etc. तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम उनको एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाते हैं। ईवीएस का सब्जेक्ट जो स्कूल में आज पढ़ाया जाता है, ये मेरे वक्त में नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन अब समाज को आवश्यकता है कि एनवायरमेंट लिटरेट को लोगों को चाहिए और उनमें अवेयरनेस डेवलप करनी है। सो कोलैबोरेटिंग ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द पब्लिक, वी हैव टू वर्क ऑल टुगेदर टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये क्या होते हैं, ये सोशियोलॉजिकल बेसिस होते हैं। समाज की आवश्यकता को अनुरूप हमें करिकुलम का डिजाइन बनाना होता है। इसी तरीके से जो तीसरा है वो क्या है, वो टेक्नोलॉजिकल बेसिस है। आज के वक्त में हर चीज टेक्नोलॉजी से ऑपरेट हो रही है। हमारे जो हमसे जूनियर बच्चे हैं, जो लेक्चरर हैं, इस वक्त हम कहते हैं आप बहुत रईस हैं, तो वो हमारा लेक्चरर बोले अरे मैडम आप हमें क्यों शर्मिंदा कर रही हैं। हमने कहा नहीं, शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं, आप हमसे बहुत रईस हैं क्योंकि आप हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में और हमको नहीं आता है, इतना नहीं आता, बस काम चला लेते हैं। सो the reason is that who is having technological skills this time, he is better or the best teacher because he can do innovative and he can do something new in this era. So क्या जरूरत किस चीज की है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग करिकुलम की फ्रेमिंग ऐसी करें कि उनमें टेक्नोलॉजिकल स्किल्स आए और वो इसी के थ्रू पढ़ें। हमारे डिफरेंट एप्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स है, उनको कैसे बनाएं। एआई है जैसे, तो एआई का टीचर मॉडल बन रहा है, टीचर बन भी गया, केरला में एक एआई टीचर बन भी गई। तो अब हमें सभी के पास तो वो चीज नहीं है, तो कैसे हाउ टू फॉर्मुलेट अ डिजाइन ऑफ अ करिकुलम so that our students could be able to understand about this AI structure. So इस तरीके के हमें इनोवेशन जो टेक्नोलॉजी में है वो भी करिकुलम में डालने होंगे, जिससे हमारे बच्चे अच्छे टेक्नोक्रेट्स बन जाएं। ये हमारा क्या है, ये हमारे टेक्नोलॉजिकल बेसिस होते हैं। सो किसी भी करिकुलम की डिजाइनिंग उस फिलॉसफी से, उसकी सामाजिक आवश्यकताओं से और उसकी तकनीकी ज्ञान और रिसोर्सेस के अनुरूप बनाया जाता है। चौथा जो फैक्टर होता है जिसको हम डिजाइनिंग में बहुत ध्यान रखते हैं, वो होता है साइकोलॉजिकल नीड्स। से फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग द करिकुलम फॉर स्कूल किड्स, तो आपको उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन बनाना होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्री प्राइमरी और प्राइमरी के, they don't have long span of concentration, वो एक जगह बैठ के नहीं पढ़ पाते हैं, एक जगह से देखेंगे एकदम से उठ जाएंगे। तो वहां पे क्या है, एक्टिविटी बेस्ड, टोटली एक्टिविटी बेस्ड वो लर्निंग करनी होगी। इसी तरीके से हमारा जो सेकेंडरी क्लास स्कूल का बच्चा होता है वो थोड़ा बड़ा मैच्योर हो जाता है, तो वहां पे थिंकिंग प्रोसेस भी होना चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए एज वेल एज थिंकिंग प्रोसेस भी होना चाहिए, क्योंकि इसका ब्रेन अब मैच्योर हो चुका है। तो वहाँ हमें उन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के हमें वो कंटेंट डेवलप करना होगा। आजकल देखिए एनईपी 2020 को आप देखिए, उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कही गई है। क्यों कही गई है? क्योंकि हमारी जो आवश्यकता है हमारे बच्चों की, वो कहती है कि एक्टिविटीज अलोंग विद क्वालिटी कंटेंट। तो क्वालिटी कंटेंट अगर है तो उसको हम सप्लीमेंट करते हैं थ्रू एक्टिविटीज। तो अब क्या होगा कि क्वालिटी कंटेंट जब है तो उसका नॉलेज एनरिचमेंट भी हो रहा है और अलोंग विद दिस उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी हाथ पैर भी चल रहे हैं। तो इससे क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। So this experiential kind of learning has been preferred in National Education Policy 2020 for the holistic development of the students. अब हम तीसरे पे आते हैं, कंटेंट पे। कंटेंट क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, और कंटेंट अब वो नहीं है कि आपने टेक्स्ट के फॉर्म में एक पैरा लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा। इवन old people like me writing, they are busy in writing such kind of textbook where paragraphs are there, but
the preference is giving to the activity based content. और हमारी पॉलिसी भी यही कहती है कि हमारे कंटेंट जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी होनी चाहिए। सो कंटेंट आपने देखा होगा, इनोवेटिव मेथड्स की जब बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड कंटेंट की बात आ रही है। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड कंटेंट इज द लेटेस्ट वे ऑफ डेवलपिंग द कंटेंट। क्यों है? क्योंकि वहां पे ये कहा गया है कि ग्राफ्स के द्वारा, टेबल के द्वारा और आपके जो एरो है, जो मैप्स होते हैं, उनके द्वारा आप अपने कंटेंट को प्रदर्शित करिए। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द टेक्स्ट बुक्स इन अ पैराग्राफ, that will be better to write it in the form of table, in a graph and a kind of arrow paragraph, this arrows. So इससे क्या होगा कि माइंड मैप बन जाएंगे। माइंड मैप बन जाएंगे, वो आई कैचर्स होते हैं। आई कैचर्स के साथ साथ इन ब्रीफ हम उसकी स्टडी भी कर लेते हैं। सो दिस कंटेंट इज वेरी इसेंशियल, दैट क्वालिटी कंटेंट हमें डिजाइनिंग के लिए लेना पड़ेगा। और कंटेंट की को अरेंज कैसे करना है वो हमको लेटेस्ट मेथड से करना होगा, जिसमें बात किसकी कही गई है? ग्राफ्स की कही गई है और मैप्स की कही गई है और पिक्चर के जरिए भी हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तीसरी बात जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस की है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। वन इज द डायरेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। Direct learning experiences are those experiences where you receive these experiences when the teacher is in the classroom and he is teaching. And a student is listening carefully what they learned from the teacher. It is direct experiences. Somewhere we say that if there is change in behavior, change of behavior of the students occurs after delivering the lecture, it means the learning experiences are effective. अगर बच्चे के व्यवहार में कुछ चेंज आता है, परिवर्तन आता है, जब टीचर का वो लेसन सुन लेता है, तो हम कहते हैं कि हाँ, ये क्या है? ये डायरेक्ट और इफेक्टिव एक प्रभावशाली लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। दूसरा जो एक्सपीरियंस होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस कैसा होता है? जैसे आपने से किसी स्टूडेंट ने कोई सवाल पूछा और आपने कहा बैठ जा, हर वक्त पूछते थे, तो ये क्या है? इससे क्या होगा? वो डिस्करेज हो। उसने आपसे कहा कि मैडम ये समझ में नहीं आ रहा है, आपने कहा आ जाएगा समझ में, किताब में पढ़ लेगा। तो आपने उसको कॉपरेट नहीं किया, आपने उसको हेल्प नहीं किया, आपने उसको क्या कर दिया? दबा दिया। तो ये एक्सपीरियंस क्या करता है? बच्चे को डिस्करेज करता है। दूसरी सिचुएशन आप और देखिए, अगर बच्चे ने आपसे कोई सवाल किया तो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए, उस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपने उसकी पिछली बातों से उसे कोरिलेट कर दिया। You have connected the student's knowledge with the past experience. तो जब आपने उसको पीछे से कनेक्ट करते हुए आप आगे की तरफ लाए, तो बच्चे ने जवाब दिया आपको और वो समझ गया कि अच्छा ये चीज ये है। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव होता है, ये इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। टीचर का बोलना, टीचर का प्रोनाउंसिएशन, टीचर का क्लास में खड़ा होना, टीचर का क्लास में स्टूडेंट के साथ बिहेवियर, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस में आते हैं। एंड आज गुरु पूर्णिमा है, हमें सभी अपने अपने गुरुओं को और सभी को मैं नमन करती हूँ कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा जो भी है उसके द्वारा हम आज धरातल पर खड़े हैं। और उन सभी इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस और डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम अपने आप को एक टीचर बना पाए। तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस यही कहता है कि बच्चे को पढ़ाइए इस तरह से कि वो आपका अपना बच्चा है और आप उसको इतना प्रेम दीजिए कि वो आगे जाके कहे माय बेस्ट टीचर वाज एक्स टीचर। वो एक्स कौन है? आप सब है। उसमें से एक्स कौन है? वो सब आप हैं। तो ऐसा बिहेवियर हमें अपने स्टूडेंट के साथ करना है जिसमें आत्मीयता हो, जिसमें प्रेम भाव हो, और तभी हम इन दिवस की जो गुरु पूर्णिमा है या टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं, उस सब की सार्थकता तभी सिद्ध हो पाएगी जब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस उस तरीके के होंगे जहाँ गुरु व शिष्य का संबंध बहुत ही
सुंदर होगा और गुरु और शिष्य में एक स्वस्थ संबंध होगा। तो ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस इस तरीके से दो तरीके के हैं, जहाँ डायरेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस की बहुत बहुत महत्ता है, बिकॉज वही टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। उसके बाद आप देखिए इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी में जो हमारा करिकुलम फ्रेमिंग होती है, तो हम ये देखते हैं कि कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट होगा हमारे कंटेंट के लिए। जैसे मैंने कहा कि कंटेंट को बहुत ही ब्रीफ में हम लेते हैं, कंटेंट को हम बहुत ही कहना चाहिए पिक्चराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करने लगे हैं। तो अब हमारी मेथोडोलॉजी वो नहीं है जिसमें हम लेक्चर दिया 35-40-45 मिनट और हमने अब कहा ठीक है अटेंडेंस ले ली, लेक्चर भी हो गया, कोर्स हमारा कवर हो गया, अब हम जा रहे हैं। तो ये अब नहीं, ये दिस इज नॉट इन फैशन। अब फैशन में क्या है, एनईपी भी आपकी ये कहती है कि ऐसी मेथोडोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी आप लाइए जहां बच्चे में 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप हो सके। तो 21st सेंचुरी स्किल्स अगर अपने स्टूडेंट्स में डेवलप करनी है तो वो आपको मेथोडोलॉजी भी उसी के अकॉर्डिंग करनी होगी। से फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, कन्वर्सेशन एंड काइंड ऑफ होलिस्टिक पर्सनालिटी, टोटल ओवरऑल। तो वो सारी जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं वो हमें डेवलप करनी है। अब एक ही टॉपिक से तो सारी स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती हैं, लेकिन कितनी स्किल्स हम एक टॉपिक के थ्रू डेवलप कर सकते हैं मैक्सिमम, ये भी हमें करिकुलम डिजाइनिंग में तय करना होता है कि ये टॉपिक जो मैंने जो पढ़ाएगा टीचर, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी, इसमें इसकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होंगी, इसमें इसकी सिंथेटिक सिंथेसिस स्किल्स डेवलप होंगी, सो ऑन। तो ये आपकी जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है वो आपको इस तरह से देनी है कि बाकी बात है 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप करनी। The last is evaluation. The last of the cycle, the last step of this cycle is evaluation. अब evaluation क्या है कि हमारे बच्चे ने, हमने जो पढ़ाया था, whatever we have taught in the classroom, what kind of changes occurred in the behavior, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, मुझे ये देखना है। तो इवैल्यूएशन को में हम लॉन्ग आंसर देते हैं तो क्या है, वो नॉलेज को प्रेजेंट करता है कि हमने इसकी नॉलेज चेक की। मल्टीपल देते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। उसके बाद जो अगर हम उसको शॉर्ट आंसर देते हैं तो वी आर गोइंग टू चेक द लैंग्वेज, वी आर ट्राइंग टू चेक द ग्रामर, वी आर ट्राइंग टू चेक द स्पेलिंग्स, वी आर ट्राइंग टू चेक द राइटिंग स्किल्स. So different kind of procedures are there to check the knowledge skills, understanding skills, and a kind of this psychomotor domain, और उसका अपना एंडिशमेंट कितना हुआ हमारे पढ़ाने के बाद, वो हम सब उसमें इवेलुएट करते हैं। तो किसी भी करिकुलम की फ्रेमिंग जब हम करते हैं, डिजाइनिंग जब हम करते हैं, तो उसको एंड में हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं। आपने देखा होगा कि आप सेशनल टेस्ट लेते हैं, सेशनल टेस्ट आप 2 यूनिट या 1 यूनिट जो कुछ पढ़ाया आपने, उसके बाद आपने उसका सेशनल टेस्ट ले लिया। तो जो छोटा एक पार्ट 1/4 of the total syllabus, you have taken the test of the student, and that sessional test shows that what the student is understanding from your side and how far you are able to develop the cognitive domain of the students. So ये जो क्या है, ये असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस होता है। ये हमारे जो करिकुलम डिजाइनिंग है इसमें हम कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन को प्रेफर करते हैं। उसका रीजन ये है कि बीच बीच में ये चेक कर लेना चाहिए कि भाई हमारा जो स्टूडेंट है हाउ फार इज एबल टू अंडरस्टैंड अस, वो कितना समर्थ है हमको समझने, तो इसे इवैल्यूएशन कहते हैं। तो आपका जो ये मैंने 5 स्टेप्स बताए हैं, ये मैं आगे जो आपको डिजाइन्स बताऊंगी वो सब में ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सो नाउ सी, ये प्रिंसिपल्स हैं करिकुलम डिजाइनिंग के। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी जो भी कंटेंट आप रख रहे हैं करिकुलम में उसका कुछ यूजफुलनेस होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नीड, जो मैंने आपको कहा कि सोशियोलॉजी बेस्ड होना चाहिए।
प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस हमने इतना मुश्किल बना दिया कि बच्चे पढ़ने नहीं चाह रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी का मतलब क्या होता है कि एक ही एग्जाम्पल बार बार कोट मत करिए, आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स दीजिए। प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंस का मतलब क्या हुआ कि वो कितना रेलिवेंट है बच्चे की जिंदगी से। फ्लेक्सिबिलिटी, ये ना हो कि बस उसी पूरी टॉपिक को 25 साल तक हमने पढ़ाया, ऐसा नहीं। करिकुलम में को रिवाइज किया जाता है, करिकुलम को हम मॉडरेट करते हैं, करिकुलम को हम टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं, और टाइम टू टाइम हम लोगों से कंसल्ट करते हैं। नई नई जो खबरें आती हैं अखबार में, हम उनके जरिए अपने करिकुलम को इम्प्रूव करते हैं। So the good curriculum designing is that where there is flexibility. बंद करिए आप अपने इसको, म्यूट करिए। अब देखिए कौन कौन सी अप्रोचेस है। द फर्स्ट वन इज द सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड है। सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच क्या होता है कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जनरलाइजेशन है, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, ये सब आ जाती हैं। Interrelated content is organized in a logical manner. Integrated threads are organized in the form of a subject. Integrated threads, ये आपके लिए एक नया वर्ड है। ये क्या है? इंटीग्रेटेड थ्रेड का मतलब होता है कि एक नॉलेज सेगमेंट को हम इंटीग्रेटेड थ्रेड्स कहते हैं। We call one segment of knowledge as integrated thread. And when there is collection of so many integrated threads, we call it as knowledge. तो वो एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो इंटीग्रेटेड थ्रेड का मतलब है that a particular segment of knowledge is known as integrated thread, and when the integrated threads are collectively beside, that is known as subject. और उनको आज अगर कुछ काम दें तो अगले नेक्स्ट डे Vijapur sir, kindly mute yourself. you know because you should बस म्यूट कर लीजिए बच्चे तो अच्छा रहेगा। और आज दे तो कहोगे तो ये कल तक खत्म कर आप लोगों की समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ या बातें Yes कर रही ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ रहे हैं मैम। Yes ma'am. जी मैम। Please continue, ma'am. हूँ? चलिए हाँ। बोलिए नहीं तो अच्छा रहेगा ना। देखिए अब देखिए जो हमारे इंटीग्रेटेड थ्रेड्स हैं इनके 3 लेवल होते हैं। एक होता है ब्रॉड लेवल, दूसरा मीडियम लेवल, तीसरा स्पेसिफिक लेवल। जैसे हमने आपसे कहा कि आई एम टीचर ऑफ फिजिकल साइंस, तो ये क्या है? मैंने आपको फिजिकल साइंस में भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। से फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स को अगर आप पढ़ाते हैं तो उसमें मैग्नेटिक्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, और डायनेमिक्स, मैकेनिक्स, ये सब बहुत है। तो मैंने तो सिर्फ एक ओवरऑल कॉम्प्रहेंसिव बता दिया आपको कि मैं फिजिकल साइंस की टीचर हूँ, या आपने कहा कि मैं जो हूँ वो लिंग्विस्टिक की टीचर हूँ, बिहेवियरल साइंस की टीचर हूँ। तो जब हम किसी भी सब्जेक्ट को उसके स्पेसिफिकेशन के साथ नहीं बताते, सिर्फ ओवरऑल एक कॉम्प्रहेंसिव टर्म बता देते हैं, तो उसको हम ब्रॉड लेवल करिकुलम कहते हैं। इसके अलावा एक होता है मीडियम लेवल। मीडियम लेवल का मतलब होता है इंग्लिश, तमिल, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी एंड सो ऑन। जब हम सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया, जैसे अलजेब्रा भी कह रहे हैं और अर्थमेटिक भी कह रहे हैं, तो अर्थमेटिक जो मैथमेटिक्स है उसमें से निकाला गया है ये अलजेब्रा, और इसको 2 हिस्सों में बताया गया, अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा। सो दिस काइंड ऑफ curriculum designing, when we make certain kind of specialization, is known as medium level. तीसरा है specific level. Specific level का मतलब होता है when we divide the medium level into further specification. अगर हम इसको फर्दर स्पेसिफिकेशन कर दें, जैसे हमने कहा कि हम लैंग्वेज के टीचर हैं, लेकिन आपने बताया नहीं मैं सिर्फ ऐसे राइटिंग कराती हूँ, दूसरी मैडम ने कहा मैं सिर्फ पोइट्री की हूँ, मैं ड्रामा की हूँ, मैं फिक्शन की हूँ। तो व्हेन द लैंग्वेज और लिटरेचर इज अगेन ऑर्गेनाइज्ड इनटू फाइन स्पेसिफिकेशन दैट कम्स अंडर द हेड ऑफ स्पेसिफिक लेवल, उसको स्पेसिफिक लेवल कहते हैं। तो ये 3 तरीके के हमारे कहना चाहिए करिकुलम डिजाइनिंग होती है।
अब देखिए, ये मैंने जो लिखा है सोर्सेज ऑफ इंटीग्रेटेड थ्रेड्स, यानी आपको जो सेगमेंट्स है नॉलेज का वो कहाँ से मिलता है? एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से मिलता है, टीचर्स के सजेशन से मिलता है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के रिव्यू से मिलता है, एकेडमिक सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस से मिलता है। तो ये सब हमारे डिजाइनिंग में हेल्प करते हैं। दीज आर द सोर्सेज दैट हेल्प अ टीचर इन डिजाइनिंग ऑफ करिकुलम। उसके बाद कंटेंट ओरिएंटेड फॉर्म है और दूसरा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड है। जो मैंने आपको कंटेंट में बताया था कि अगर आप कंटेंट को इंटर यूनिट, इंटर सब यूनिट के फॉर्म में लिख रहे हैं या आप उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये क्या होता है? ये सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच में आएगा। ये कंटेंट ओरिएंटेड पैराग्राफ्स में लिखा है, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड आपने उसको किसी टेबल के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में, कार्टून की कोई तस्वीरें दिखा कर किया है, तो वो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड फॉर्म कहलाता है। ये जो हमारा इस तरीके की जो डिजाइनिंग होती है, इसका बहुत एडवांटेजेस हैं। जैसे बच्चे, ये बहुत लॉजिकल है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इसका नॉलेज फॉर लॉन्गर टाइम रहता है, and it facilitates the development of intellectual abilities. It enables the learner to deal more effectively. So many advantages are there of this subject-based approach, but certain kind of disadvantages are also there. Disadvantages क्या है कि टीचर जो है वो उसको कभी कभी मिसयूज करने लगते हैं। कैसे यूज करते हैं कि many time teachers handle subjects by totally ignoring students' experiences and they employ more of blackboard and chalk than students' activities. तो वहाँ पे अगर हमने ठीक से उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक से उसको डील नहीं कर रहे कंटेंट को, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। एक डिजाइनिंग ये है एक्टिविटी बेस्ड, इसमें ज्यादातर एक्टिविटीज को लिया जाता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक्टिविटीज के थ्रू करिए। बट इस डिजाइनिंग का फायदा है, फायदा ये है कि स्टूडेंट बड़े रिलैक्स होते हैं, अभी काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं और खुद भी अपने घर पे भी क्रिएटिव एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन पूरी साल में हमको कितना महीना मिलता है? जुलाई से शुरू होगा हमारा सेशन, तो एंड हो जाएगा उसका नवंबर दिसंबर में, तो हमको 4-5 महीने हार्डली मिलते हैं, उसमें छुट्टियां भी आ जाती हैं। तो अगर हम हर कंटेंट को, हर हर यूनिट को इस एक्टिविटी से पढ़ाएं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम कोर्स खत्म कर पाए। सो ये इसके लिए क्या जरूरी है कि यू मे हैव एक्टिविटी वेयर नीडेड, जहाँ जरूरत है वहां दिखाइए और जहाँ जरूरत नहीं है वहां उसको क्वेश्चन आंसर से या डिस्कशन से आप कर सकते हैं। सो नो डाउट एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग and it has its own advantages, and somewhere the disadvantage is that due to lack of time it is not possible to show every content by the activity. ये environment based approach है। ये छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, ये प्री प्राइमरी के, तो कहीं पे उनको मार्केट ले गए, एग्रीकल्चर फार्म में ले गए, मार्केट प्लेस पे, कल्चर सेंटर, टेम्पल एग्जीबिशन, फिजिकल, नेचुरल, सोशल, कल्चरल, ये 4 एनवायरनमेंट है। इनमें एनवायरनमेंट से उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन। सो दिस इज एनवायरनमेंट बेस्ड अप्रोच, बट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इट इज नॉट पॉसिबल, ओनली पॉसिबल इन प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्कूल। ये इसके एडवांटेजेस है, बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत उनको मजा आता है, लेकिन हम अपने इंस्टीट्यूशंस में हायर लर्निंग में इसको नहीं कर सकते। अब देखिए कोर करिकुलम, ये हमारी पॉलिसी जो है वो कोर करिकुलम को प्रेफरेंस देती है कि डिजाइनिंग जो है वो कोर करिकुलम होना चाहिए। कोर करिकुलम को अगर हम समझें तो कुछ कुछ कोर क्वालिटीज हैं, कुछ कोर लर्निंग्स हैं। तो वो क्या है? से फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं चाहे कोई सब्जेक्ट का टीचर हो, सब चाहेंगे कि हमारे बच्चे को हमारी सब्जेक्ट का ज्ञान हो, ठीक है? तो ये क्या है? ये कोर वैल्यू है कि उसका ज्ञान उसको होना चाहिए। दूसरी उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको होनी चाहिए। तीसरी मॉरल वैल्यूज पे आ जाते हैं कि भाई वो सच्चाई से, ईमानदारी से काम करे, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए हमारी पढ़ाई के बाद, और वो खुद ब खुद उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले।
So the core values are that values that make the student master of that particular subject, along with this other indirect kind of experiences if he has received in terms of personality. So that should be developed through every subject. चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, वहाँ कोर करिकुलम को कहा गया है कि उस बच्चे को ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, अपने पर्यावरण के प्रति सचेत होना चाहिए, और डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस क्या है उसको पता होने चाहिए। तो ये कोर वैल्यूज हैं। अब इसका एक सेट ऑफ एसेंशियल कोर वैल्यूज हमारी पॉलिसी में भी दिया गया है, जो ये लिखा है, यानी नॉलेज, फाउंडेशनल नॉलेज अक्रॉस डिसिप्लिन, critical thinking and problem solving skills, exposure to diverse fields, ethical, cultural, and global awareness, and a well-designed core curriculum ensures that graduates are well-rounded, adaptable, and equipped for lifelong learning. इस डिजाइनिंग की बात पॉलिसी में कही गई है, जिसमें ये 4 पॉइंट दिए गए हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो इन चीजों को रिसीव करें, परसीव करें करिकुलम के द्वारा। क्या क्या है वो? नॉलेज, ज्ञान है, क्रिटिकल थिंकिंग यानी एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण, समस्याओं को सॉल्व करने के कौशल, और डिफरेंट फील्ड का एक्सपोजर, ethical, cultural and global awareness that is related to values, ethically strong होने चाहिए, cultured होने चाहिए, और उन्हें जागरूकता होनी चाहिए अपने ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में। ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको सभी स्टूडेंट चाहे नोट कर ले, और मैं दे दूंगी पीपीटी, तो फिर आप उससे कर भी सकते, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़े। Key aspects of core curriculum in NEP 2020. Emphasis on liberal education. हमारी NEP 2020 कहती है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का करिकुलम के थ्रू, क्रिटिकल पेडागोजीज होनी चाहिए, एस्थेटिक एंड क्रिएटिव आर्ट्स होनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, and major and minor system. Student choose a primary discipline and a secondary discipline minor. Example, a physics major can take economics or history as a minor. ये क्या मतलब है इसका? ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो लेटेस्ट हमारा करिकुलम का डिजाइन है वो यही है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जहां पर हम बच्चे को सिर्फ एक सेगमेंटेड फॉर्म में नहीं पढ़ा रहे हैं कि वो इकोनॉमिक्स का बच्चा है, वो इकोनॉमिक्स की क्लास यहाँ होती है, सोशियोलॉजी का है वो यहाँ होती है, ऐसा नहीं है। हम एक दूसरे सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, और बच्चे को मेजर और माइनर सब्जेक्ट भी ऐसे दे रहे हैं कि वो ऐसा ना हो उसका जो इंटरेस्ट है वो कहीं क्रश हो। से फॉर एग्जाम्पल, ये कोई बच्चा है भाई म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड है, अब उसके पेरेंट्स कह रहे नहीं इकोनॉमिक्स ही लीजिए, तो वो माइनर में ले सकता है। वो मेजर अगर इकोनॉमिक्स ले रहा है तो माइनर में वो अपना इंटरेस्ट भी रख सकता है। इससे क्या होगा कि उसको उसका जो डेवलपमेंट है वो कहीं भी डिटीरियरेट नहीं हो रहा है, बल्कि दोनों ही एंड्स पे हम उसको ऐसे एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं कि वो अपना फ्यूचर दो तरह से बना रहा है। वो चाहे तो म्यूजिक को भी एज अ करियर अडॉप्ट कर सकता है, और चाहे तो अपने इकोनॉमिक्स में भी आगे बढ़ सकता है। तो जो लिबरल आर्ट एजुकेशन है ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे स्टूडेंट्स को देती है। काहे के लिए देती है? कि यू आर द पर्सन ऑफ इकोनॉमिक्स, नो डाउट, बट यू मे हैव chances to develop your talent in form of music, art, visual arts and other kind of interest you may carry on in coming future also. So major and minor student choose a primary discipline major and a secondary discipline minor. Example of physics major can take economics or history as a minor. तो जिसमें आप चाहें इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। So this kind of liberal education is giving in NEP 2020,
4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो हमारा करिकुलम है उसमें फर्स्ट ईयर अगर कर लेता है तो सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर करता है तो डिप्लोमा, थर्ड ईयर करता है तो बैचलर्स, फोर्थ ईयर करता है तो बैचलर्स प्लस रिसर्च ऑनर्स। ये 4 बनाए गए हैं, 4 सालों में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का करिकुलम बनेगा। इसमें क्या क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS, जिसमें फिलोसफी, ट्रेडिशन, साइंटिफिक हेरिटेज पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को। स्किल एंड वोकेशनल इंटीग्रेशन, यानी स्किल्स को बहुत प्रेफरेंस को भी आगे कहा गया है। उसकी वजह ये है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ के अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था। भाई बच्चे ने पढ़ लिख किया है, BA पास कर लिया है, हमने खड़े हुए हैं अनएम्प्लॉयमेंट की लाइन में। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या है कि स्किल एंड वोकेशनल इंटीग्रेशन भी सब्जेक्ट्स में रखा गया है कि कोई स्किल अगर है उसके अंदर तो एटलीस्ट वो एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सकता है। सो इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, हैंड्स ऑन लर्निंग आर द पार्ट ऑफ द करिकुलम। हमने कहा है ना कि भाई इंटर्नशिप भी होगी, बच्चे जा भी रहे हैं, लॉ के बच्चे गए थे इंटर्नशिप पे, लैंग्वेज के बच्चे गए थे। तो इंटर्नशिप क्या है? वो हैंड्स ऑन स्किल है। हैंड्स ऑन स्किल दैट इज प्रैक्टिकल फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो थ्योरी उन्होंने क्लास में पढ़ ली, प्रैक्टिकल उन्होंने इंटर्नशिप के फॉर्म में कर लिया। सो नाउ दे आर हैविंग स्किल्ड डिग्री। So NEP 2020 says that if the degree is one hand, the skill should be in another hand. So this is a combination of theory along with skills. The reason is that we want to develop students' future independently. They could be able to earn money just to fulfill bread and butter, and also to make them as a independent person of the society. ज्यादा से ज्यादा वो अपना काम कर सकें, पैसा कमा सकें, अपने लिए कर सकें, फैमिली के लिए कर सकें, और सोसाइटी पे भी वो बोझ नहीं बनेंगे अगर वो कुछ अर्न कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा जहाँ जिस परिवार में पैसा है या सभी लोग पढ़े लिखे हैं, खा पी रहे हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ों का नहीं है। लेकिन जहाँ पे सुबह से ही लेबर क्लास में परेशानी पैदा हो रही है कि पैसे नहीं है, कैसे हम ब्रेड बटर करें, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाना भी है और उनके साथ साथ उनको स्किल्स भी दीजिए, सो दैट दे कैन मेक देयर फ्यूचर ब्राइट। ये मैंने रिकमेंडेशन लिखी है NEP 2020 की। इसमें क्या बताया है कि NEP 2020 emphasizes liberal arts education as part of a multimodal comprehensive approach to learning, and the policy stresses breaking down disciplinary barriers and encouraging critical thinking, creativity. ये आपकी 21st century skills, critical thinking, creativity, ethical reasoning, ये सब उसमें आते हैं। तो यही चीजें इन्होंने कहा है। अब NEP 2020 पुश फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, जो अभी मैंने आपको बताया। फ्लेक्सिबल करिकुला मतलब कि अगर कोई नया आविष्कार हुआ है, कोई नया इनोवेशन हुआ है, तो यू कैन ऐड देयर। ऐसा नहीं है कि आप उसी लकीर के फकीर बने हुए हैं और आप पढ़ाते चले जा रहे हैं, यू कैन चेंज इट। एंड क्रिटिकल थिंकिंग अलाइंस विद ग्लोबल लिबरल आर्ट्स मॉडल्स by dismantling rigid streams, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। पहले यही था ना, आर्ट्स के बच्चे हैं आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ रहे, साइंस के बच्चे साइंस फैकल्टी में पढ़ रहे, कॉमर्स के कॉमर्स फैकल्टी में पढ़ रहे। अब नहीं है, हमारे एजुकेशन के बच्चे ITEP के जरिए सारी फैकल्टीज में पढ़ने जा रहे हैं। जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, हमारे स्टूडेंट्स जो BEd कर रहे हैं वो 3 साल तक सभी फैकल्टीज में जा जाके पढ़ रहे हैं, और जो उनका 4th ईयर है उसमें हम उनको BEd कराएंगे। तो वो अगर चाहें तो बीच में एग्जिट भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का भी प्रोविजन करिकुलम में है कि अगर आप चाहें, आपको नहीं अच्छा लग रहा BEd, तो आप अब BSc या BA में चले जाइए, आप उसको आगे कैरी ऑन कर लीजिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यू कैन कैरी ऑन द 4th सेमेस्टर, यू मे हैव दिस पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस आल्सो। सो ये एक चॉइस है बच्चों के पास। तो सो दिस इज अ काइंड ऑफ गुड पॉइंट और a kind of opportunity with the students, whatever they want they may do it. So ये आपकी critical thinking ये सब 21st century skills में आ जाते हैं। अच्छा, इसको जो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको कहते भी है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ चैलेंजेस। चैलेंजेस तो आएंगे भाई, जब आप इतना ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं
So there will be challenges, and it is a mixture of challenge, it is a mixture of chance. Chance का मतलब क्या है कि हम स्टूडेंट्स को चांस दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. It is a mixture of challenge, chance, choice and collaboration, जहाँ पे हम एक दूसरे से कोलैबोरेट भी कर रहे हैं. सो इसको हम मिक्सचर इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, किसी ने किया है कि इट इज अ चांस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ chance, choice and collaboration and challenges also. So no doubt that statement fulfills the spirit of NEP 2020. Development of all capacities of human being, ये भी वही चीज है. पंचकोशा विकास, डेवलपमेंट ऑफ 5 शीट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये IKS का वर्ड है. पंचकोशा विकास, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए. The holistic development of human capacity envisioned in NEP 2020 is achieved through its 5 foundational pillars. वो कौन कौन से हैं 5 foundational pillars बताइए. NEP 2020 के 5 कौन से पिलर्स हैं जो हम कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इन 5 पिलर्स पे बेस्ड होना चाहिए. एक एक करके आप बताइए आप लोग प्लीज. एज ग्रुप, नो एज मैम, ग्रुप नहीं, सबसे एक्सेस, आई थिंक हाँ, शायद एक्सेस Access, एंड yes, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. yes, आई थिंक मैम क्वालिटी भी है, लेकिन yes, फिफ्थ वाला याद नहीं आ नहीं रहा है. है. हाँ, क्वालिटी भी है, क्वालिटी है. इक्विटी, Equity is important component. हाँ, इक्विटी, Equity, accountability. Yes, Accountability yes. also. Very good, very good, और very accountability. good, very good. Quality, access, equality, equity, affordability, accountability, ये पिलर्स हैं. ये फंडामेंटल पिलर्स हैं हमारी NEP 2020 में, जहां वो कह रहे हैं एम्ब्रेस द इक्विटी. क्यों कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास. हमें किसी को भी, नो वन हैज लेफ्ट बिहाइंड, हमें किसी को भी नहीं छोड़ना है. हमें सबको अपने सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में लाकर उनको शिक्षा देनी है. तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का ये स्लोगन भी है. तो इसको क्यों कहा गया है, इसको इसीलिए कहा गया है कि अगर सभी पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्र खुद समृद्ध हो जाएगा, वहां पे प्रोस्पेरिटी की सीन दिखाई देगा. सो दिस काइंड ऑफ foundational pillars on which the NEP 2020 is based, it says that the curriculum should be qualitative, इसमें quality content होना चाहिए. Equality, that there should not be a kind of gap between rich and poor, between rural and urban, or any kind of gender, male and female, ये नहीं होना चाहिए. और equity का मतलब क्या है, give equal opportunity to all and participation of all is very essential. So participation is possible when we extend our educational facilities to all the direction. All the direction means that we extend the quality education to rural areas, extend the education to the remote areas जहाँ पे के ट्राइब्स हैं. तो हमको जब सबको लेके आना है और सबका विकास करना है तो वहाँ इक्विटी की बात की गई है. अकाउंटेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ये रिसोर्सेज के ऊपर है. अकाउंटेबिलिटी, द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज अकाउंटेबल टू रिस्पॉन्ड. आप काम को अच्छा करें क्लास में, आप बच्चों के विकास पे ध्यान दें, ये आप अकाउंटेबल हैं इसके लिए. So all the stakeholders involved in the process is accountable to respond. So this is the main pillars for this. ये लिखे हुए देखिए, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंट. इसमें इक्विटी है, इक्वालिटी भी होना चाहिए, क्वालिटी 1 2 3 4 5, ये 5 पिलर्स फाउंडेशन. मल्टीडिसिप्लिनरी एनवायरमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन, जो हमारे अकेले काम कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल अकेला टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो किसी से अटैच्ड नहीं है,
उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया है कि स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन शुड बी शट डाउन, उनको बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता है। हमारा जो कॉलेज है उसमें बीए भी चलना चाहिए, बीएससी भी होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए। सो जो अकेले चल रहे हैं उनको शट डाउन कर दीजिए और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करिए। Breaking silos in universities, NEP 2020's vision for holistic learning, इसके ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, न्यू कोर्स डिजाइन, शेयर्ड स्पेसेस, ये हमारा करिकुलम के 3 बातें हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। स्टूडेंट्स कैन नाउ मिक्स स्टेम, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, engineering and mathematics with humanities through open electives, and new course design, shared spaces, ये इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। नए नए कोर्सेज बहुत से डिजाइन हुए हैं। और शेयर्ड स्पेसेस, साइंस एंड आर्ट्स डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट्स एड्रेसिंग सोसाइटल चैलेंजेस, यानी जो हम लोग एक तरह से अलग अलग चल रहे थे ना, वो साइंस का है, वो उसका है, इस तरह से नहीं, साइंस को आर्ट से कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट बनाइए, जिससे आप इन कोलैबोरेशन यू कैन डू योर वर्क। सो ये क्या है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। और इन्होंने कहा है कि सिंस 2047 उस तक हमको सारे सस्टेनेबल गोल्स अचीव कर लेने हैं। अमृत काल कहा है, दिस पीरियड को दे कॉल दिस पीरियड अमृत काल। अमृत यानी सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कभी नहीं मरता, अमृत आ प्लस मृत, जो कभी नहीं मरता। तो एजुकेशन को हमें आगे बढ़ाना है और हमें इस तरह से करना है कि अमृत काल हमारे हम सबको समृद्ध कर दे और खुशहाल कर दे। सो दिस काइंड ऑफ spirit and ethos that we observe in the NEP 2020 is a kind of realization that we want to see a prosperous nation. हम एक समृद्ध राष्ट्र को देखना चाहते हैं, खुशहाल राष्ट्र को देखना चाहते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारे यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो और हमारे बच्चों में स्किल्स हो और वो अनएम्प्लॉयड ना रहे। ये नई नई पेडागोजी, इमेजिनेटिव करिकुलम एंड पेडागोजी की बात कही गई है, जिसमें स्टोरी टेलिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, गेमिफाइड क्लासरूम्स, आर्ट इन्फ्यूज स्टेम, इन सब पे काम कर रहे हैं हम लोग एजुकेशन वाले। इन चारों पे जो की इनोवेशंस लिखे हैं, इन चारों पे रिसर्चेस भी कर रहे हैं। सो ये सब जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं, ये बहुत फ्रूटफुल है फॉर अस फॉर मेकिंग द करिकुलम enriched. Establishing and strengthening departments for multidisciplinary and cross-disciplinary, creating hybrid departments, reimaging existing departments, support structures for collaboration, curriculum architecture, industry academia interface, ये internship की बात है। ये इसमें 5 पॉइंट्स हैं। और देखिए आगे, देखिए लिबरल एजुकेशन टू बी accomplished by rigorous specialization, स्पेशलाइजेशन भी हर सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा, जिससे मेजर माइनर स्ट्रक्चर, कैपस्टोन, इंटीग्रेशन, क्रेडिट फ्रेमवर्क, डुअल इंटेंसिटी अप्रोच, ये हमारे की फीचर्स हैं रिगरस स्पेशलाइजेशन के। सेवा सर्विस, जो आपको कोर करिकुलम बताया था कि इथिकल मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, उनको इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया है। मैंडेटरी कम्युनिटी एंगेजमेंट, इंटरडिसिप्लिनरी सर्विस लर्निंग, एथिकल लीडरशिप, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। ये आपको पढ़ा दिया मैंने आपको, आगे चलते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की बात भी कही गई है कि जो करिकुलम है उसे आप ऑनलाइन से पढ़ाइए। क्यों पढ़ाइए? क्योंकि जो नहीं आ पाते हैं स्कूल में, दे एटलीस्ट दे कैन गो थ्रू ऑनलाइन। डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो भी हम पूरा कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन से। ग्रेजुएट प्रोग्राम, रिसर्च एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये भी ऑलमोस्ट आप पढ़ चुके। अच्छा, ये हो चुका, इसको कर चुकी मैं। अब आप अपने सवाल पूछिए। Friends, on behalf of the entire class, I thank Professor
Nasreen ji for delivering a wonderful lecture. She has a very long PPT which will be shared with all of you, and you will read later. Before you start asking questions, I would be requesting Dr. Nagendra Mishra ji, if he is listening to me, to formally propose vote of thanks to Professor Nasreen. और डॉक्टर नागेंद्र मिश्रा जी हैं, बैठे हैं, क्योंकि 5 घंटे तक स्टेमिना लेके जो लोग बैठे हैं, आई थिंक ही इज नॉट अराउंड, या तो वो छोड़ दिए। सर, इफ यू परमिट मी, क्या मैं वोट ऑफ थैंक्स कर सकती हूँ? सबिया, हाँ जी, सबिया जी, क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद में Sabiya ji will propose vote of thanks after the question answer session ends. Now the floor is yours, friends. You can ask questions, doubts, make observations, etc. on the topic which has been covered today. विजयपुर सर नमस्ते। मेरा एक सवाल है मैडम से। मेरा एक सवाल है कि मैम ने कहा कि यहाँ हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंडियन ट्रेडिशनल हिस्ट्री वगैरह को पढ़ाने पे जोर दिया गया है। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही गवर्नमेंट, खासतौर से सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, उसके रूलिंग स्टेट में बीच से मुगल हिस्ट्री को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। तो ये आप मुझे समझाएं कि आने वाले दिनों में हमारी नई नस्ल जो पूरे तौर पे अपनी हिस्ट्री से नाबलद होगी, तो आने वाले दिनों में इसका क्या नुकसान हमारे समाज को, हमारे बच्चों को झेलना पड़ेगा? Just before she gives the answer, देखिए, I am from Karnataka. My government has rejected NEP 2020. Tamil Nadu has rejected NEP 2020, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें सैफ्रॉन कलर नजर आ रहा है, you know. Okay, now the floor is yours. चलिए नहीं सर, I do agree with sir. ये जरूरी नहीं है कि जो कह दिया है वो होगा, उसको अपोज नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इसके नुकसानात में किया जा रहा है, तो इसके नुकसानात समाज को क्या हो सकते हैं? नहीं, देखिए, बहुत से नुकसानात हैं। जैसा हमने एक प्रीवियस कमेंट में बताया था कि हम कहते हैं कि इंडिया सोने की चिड़िया है, क्योंकि द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स आर इन इंडिया। यहाँ की औरतें इतनी गोल्ड कलेक्ट किए हैं कि पूरी दुनिया में गोल्ड रिजर्व सबसे ज्यादा इंडिया में है। और इस सोने की चिड़िया कब बना इंडिया सोने की चिड़िया बना जब जहांगीर का पीरियड था, एंड 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी वाज इन इंडिया। अगर उस पीरियड को आप नहीं पढ़ेंगे तो अमृत जहर बन जाएगा, अमृत काल विल बिकम प्रॉब्लमेटिक। Excuse me, sir. One more question. हाँ जी, और सवाल पूछिए। शफीउल जमा साहब पूछिए। जी सर। गुड आफ्टरनून सर। सर, अभी मैडम ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो अभी तो यूपी में सर जो है, जो प्राइमरी बेसिक एजुकेशन के जो स्कूल है उनका मर्जर किया जा रहा है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो है कैसे जो है सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ हो रहा है। इस पे मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ। देखिए शफी साहब, कोई भी काम जब इनिशिएट किया जाता है तो बहुत सी चुनौतियां आती हैं, बहुत से चैलेंजेस आते हैं, और बहुत जगह पे हमको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चीजें नहीं नजर आती, तो हमको बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन काम की शुरुआत में अगर हम सब मिलके काम करें और सब सोचें कि भाई देखिए जो कुछ भी है पॉजिटिविटी है और पॉजिटिव ही होगा, तो आप देखिए कि स्कूलों में भी बहुत सख्ती हुई है। टीचर्स को बहुत से सस्पेंड किए गए, बहुत से टीचर प्रिंसिपल्स को बुला के एक्सप्लेनेशंस हुए। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमको भी उसमें साथ देना होगा, और हमारे जो स्कूल्स हैं उनकी भी स्वस्थ जो चित्रण है, जो स्वस्थ उनकी इमेज है, वो हमारे सामने आएगी। अभी शुरुआती दौर है, इन चैलेंजेस को एज अ पॉजिटिव चैलेंज आप एक्सेप्ट करिए। नहीं, हमारा सवाल ये है कि 1 किलोमीटर के अंदर जो है प्राइमरी पाठशाला होनी चाहिए। तो आप जब मर्जर कर रहे हैं तब तो ये ऐसे ही जो आपने रूल बनाया वायलेट हो रहा है, और सबका साथ सबका विश्वास का जो अवधारणा है ये तो मर जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा मैडम।
देखिए जिन स्कूलों में कुछ भी नहीं हो रहा था और जहाँ पे टीचर भी नहीं पहुंच रहा था तो उसको मर्ज कर दिया उन्होंने, दो तीन स्कूलों को मिला नहीं तो ये के। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ मैडम ना, कि टीचर नहीं पहुंच रहा है, क्यों नहीं पहुंच रहा है? ये तो तो वो टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। देखिए इन सब चीजों का भी केस स्टडीज होगी और अगर जी। जरूरत है तो और खोल दिए जाएंगे। ओपनिंग की भी बात कही गई है और जहाँ काम नहीं हो रहा वहाँ क्लोजिंग की भी बात और कही गई यहाँ है। तो लोग डरे हुए हैं कि हायर एजुकेशन में भी यही फार्मूला लागू कर दिया जाएगा, तो ऐसा दिक्कत होगी। नहीं अभी है। ये शुरुआत है। देखिए डरा तो तो सिर्फ खुदा से चाहिए, ऑलरेडी खुदा से डरना चाहिए। मेरा विश्वास है कि सिर्फ खुदा से डरिए, बाकी किसी से मत डरिए। अपने काम को अगर आप वक्त से करते हैं और मेहनत से करते हैं तो आप किसी से डरिए मत। तो कोई नहीं डरना चाहिए किसी को। जो कुछ भी होगा वो हमारे अभी इन्होंने एक जो है यूनिफाइड कमीशन बना दिया है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे हैं, सब इंटर कॉलेज में पोस्ट वैकेंट्स हैं, डिग्री कॉलेजेस में पोस्ट वैकेंट्स हैं, वो सब उसकी फिल हो कोई जाएंगी। स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आ रही है। तो एक तरफ कह रहे हैं बंद कर दीजिए, दूसरी तरफ वो फिल करने के लिए भी कह रहे हैं। तो आप सब लोग उनको कॉपरेट करिए। जब पब्लिक कॉपरेट करती है तो पॉलिसी फिर खुद फंक्शनल हो जाती है। तो इसलिए चलिए जरूरत यहाँ एक कॉपरेशन की है। एक हम नहीं, हम क्रिटिकल लोग तो सरकार का सर, सहयोग कर ही रहे हैं। हम लोग तो एम्प्लॉई हैं, जाहिर सी बात, हम लोग करना ही सहयोग। सर आप बताइए आपको कुछ लेट कहना है? मी शेयर ए क्रिटिकल आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक जी। तो अभी जो सरकार है, चाहे सेंटर में हो या यूपी में हो, इनका ऑब्जेक्टिव है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जी और जी। सबका साथ सबका विकास कागज पे है, सबका साथ सबका विकास रियलिटी में है या नहीं, लेकिन सरकार के साथ बुलडोजर जरूर है। जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। दिस इज द आंसर। या नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रोफेसर विजा सर, विजापुर सऊद सर। जी। हाँ जी निखिलेश। मेरा निखिलेश मेरा जी, आपसे डॉक्टर सर, निखिलेश। मेरा दो सवाल है। सऊद आलम। हाँ, अच्छा, पहले सर। सऊद आलम, उसके बाद निखिलेश जी। सर मेरा एक सवाल ये है कि जब मैं जेएनयू में पढ़ रहा था तो उस टाइम यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर थोराट सर थे। तो उस वक्त जो पॉलिसी बनी थी, जैसे कि हायर एजुकेशन के लिए एक ये था कि भाई नेट कंपलसरी है, तो ये सरकार एक लाए है अमल ऐसा तैयार क्यों नहीं करती है जो 20 साल के लिए हो या 25 साल के लिए हो, कि नेट कंपलसरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कभी आपको नेट पर रखते हैं, कभी हटा देते हैं। सर मेरा एक सवाल आप सब लोगों से है। मेरा भी एक सवाल आप सब लोगों से है। इज इट रिलेटेड टू No, ma'am. करिकुलम? जो आपका टॉपिक है करिकुलम डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग, इज द क्वेश्चंस रिलेटेड टू करिकुलम? Yes, ma'am. I have a question relating to curriculum. Ma'am, can I ask से one more पूछिए। development? हाँ, आज के टॉपिक पे मैम? बोलिए। जो दूसरे हाँ, टॉपिक हैं फिर हम टॉपिक से कभी पूछिए। किसी और दिन लेते हैं, किसी और हाँ, दिन। Ma'am, can I ask Curriculum- one more? Can I have- यस। निखिलेश जी हाँ, के हाँ, बाद हाँ, पूछना चाह रहे हैं कोई दिव्या डॉक्टर साहब? कुमारी जी। जी। फर्स्ट नीड वन एंड देन सर, नीड वन नमस्कार सतीश, आप थोड़ा शांत रहेंगे तो मैं अपनी मोर बात सेशन सर, नीड। हम करेंगे जी, कर जी, लेंगे। जरूर। ओके सर, थैंक यू। जी दिव्या जी पूछिए। जी दिव्या जी मैम पूछिए। मैम मेरा ये पूछना है कि एनईपी में जो ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें जैसे हम लोग अगर किसी ऐसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो जैसे ओपन सोर्सेज वाले हैं, जैसे यूट्यूब है, और इस पे अगर हम टीचिंग करते हैं तो क्या वो हमारे करिकुलम का पार्ट माना जाएगा, हमारे टीचिंग का पार्ट माना जाएगा? सपोज दैट हम अपने सिलेबस के वीडियोस रिकॉर्ड करके बच्चों को शेयर करते हैं, तो क्या ये पार्ट माना जाएगा? और जहां तक कुछ लोग इथिक्स की बात करते हैं कि टीचिंग प्राइवेटली या टीचिंग ऑनलाइन ये जो है सही नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, तो इसमें क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं? थोड़ा प्रकाश डालिएगा प्लीज। देखिए अगर आप अपने बच्चे को अपने मटेरियल के अकॉर्डिंग सपोर्टिंग मटेरियल दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, so you are doing appreciable work and I appreciate and say thank you very much to you because you deserve for a big congratulations. It is co-curricular activities that I told you, curricular, co-curricular and extracurricular. So a good teacher always like to provide the supplementary material to the students. So if you are doing that comes under the head of curriculum. Okay. As far as guidelines is concerned, it differs from state to state. If you want to know about your college, that whether I'm able to show this video
to my students, you may take permission from your principal. And it is allowed by the UGC, allowed by the other authorities also, if the supplementary material is provided by the teacher. Ma'am, this is Dr. Abu Hassan from जी Kolkata. बोलिए. Actually, I just wanted to add, ये जो सर ने जो अभी बताया उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि मैंने एक जगह से पूछा था इसी चीज के बारे में, तो उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ स्टडीज से ये चीजें जो है ये अप्रूव्ड होना चाहिए. तो हर एक आप अगर हर एक चीज में अगर फिर क्या वो उसके बाद इसका हमें सपोर्ट मिलता है उसमें, ये मुझे पूछना. हाँ, ये तो है. देखिए, ये भी आपकी बात सही है. ये बात आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड है कि बोर्ड ऑफ स्टडीज भी सपोर्ट हर चीज में नहीं करती है, लेकिन आप फ्री हैं. यू आर फ्री टू प्रोवाइड any kind of new innovations to your students with the permission of your principal. आप बोर्ड में जाके प्रिंसिपल के पास जाके अगर परमिशन ले लेते हैं, कोई ऐसी चीज दिखा रहे हैं जिसका जिक्र हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो परमिसिबल है, वो परमिसिबल है. और उसकी परमिशन बोर्ड से प्रिंसिपल साहब भी ले सकते हैं. बाद में उसकी परमिशन एजेंडा में रख के ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं. और एक सवाल था मैम, ये जो इंटर्नशिप वाला जो बात है, ये इंटर्नशिप में कैसा है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, जैसे 120 आवर्स है या 60 आवर्स. तो मेरा सवाल ये था कि ये इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए 3 महीने में किसी बच्चे ने अगर इंटर्नशिप स्किल्स अगर हासिल कर लिया, तो उसको तो उस हिसाब से इंडस्ट्रीज वाले उस हिसाब से एक्सपीरियंस में नहीं गिनेंगे, क्योंकि मिनिमम अगर आप देखेंगे एक्सपीरियंस में 1 ईयर जैसा होना चाहिए. और यहाँ पे तो यूनिवर्सिटीज ओनली 60. एंड फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी ने अगर कहीं पे जाके इंटर्नशिप किया, इसकी क्या हम जस्टिफिकेशन रख सकते हैं कि वो जब अगर बड़ा कंपनी में शिफ्ट होगा या कहीं और अगर जाएगा तो ये एक्सपीरियंस उनको काउंट होगा? मिसाल के तौर पर मान लीजिए जैसे होगा, उसको सर्टिफाई करेगा उसका इंस्टीट्यूशन उसको भेजेगा और वो उसको सर्टिफाई भी करेगा, काउंट भी होगा. और कोई ऐसा थोड़ी है कि इसमें मनमानी चल रही है. और एग्जांपल सुन लीजिए, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे ने अगर डीटीपी वाला काम अगर शुरू किया, मान लीजिए टाइपिंग कैसा करना है या मान लीजिए एक्सेल पे किस तरीके से काम करना है, उसने उसके बारे में थोड़ा सा उसने नॉलेज हासिल कर ली. और बाद में जाके जब वो 1 साल के बाद जब अपना डिग्री कंप्लीट करता है, हालांकि उसका डिग्री अलग है, और फिर उसके बेसिस पे अगर कभी अगर मान लीजिए वो जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो उसका तो कोई कनेक्टिविटी ही नहीं बनता है. जैसे देखिए, बात को समझिए. इंटर्नशिप जो है, इंटर्नशिप प्लान फॉर्म में है. आपका इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स को भेजेगा, उनके कॉन्टेक्ट्स होंगे जिससे, और उसमें भी पूरा MOU साइन होगा. ऐसे नहीं है कि आप 3 महीने के लिए गए थे और 4 महीने तक कर रहे हैं. नो, there will be MOU signed by the institution and industry, and on the basis of proper guidelines, the students will have to do work. If they have completed it as per guidelines, they will be provided certification. That will be the certified internship from that particular institution. So it is not connected with in for future. example, मान लीजिए किसी ने MSc में मैथ्स किया है, MSc में मैथ्स किया, तो वो उनको इंटर्नशिप में क्या मिलेगा आप बताइए. जैसे फॉर एग्जांपल डेटा माइनिंग कर लिया या इसमें कर लिया, तो उनके साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं बन रही है. ऐसा है ना, जिसमें इंटर्नशिप जरूरी नहीं है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी इंटर्नशिप कर देंगे. उसमें दूसरी एक्टिविटीज रखेंगे जिससे उसमें स्किल्स आ जाए. कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है. व्हाट इज द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग्स विल बी डिसाइडेड. सो डोंट वरी फॉर दैट. थिंग्स विल बी ऑन द करेक्ट लाइन. और इंटर्नशिप बड़ा प्रोडक्टिव होगा अगर इट इज पेड इंटर्नशिप. अगर पेड इंटर्नशिप तो स्टूडेंट विल टेक इंटरेस्ट, उनको थोड़ा बहुत पैसा भी मिलेगा. दिव्या कुमारी जी बताइए. थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर सच एन इन्फॉर्मेटिव सेशन. मैम, मेरा सवाल ये है कि जो NEP में ये हर 6 मंथ पे बच्चों के सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, ऑनर्स सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, तो ह्यूमैनिटीज में मैं देख रही हूँ कि उनके हर सेमेस्टर हर 6 महीने पर उनको सब्जेक्ट चेंज करना है और ये नेसेसरी है. तो मैम, इससे उनको क्या फायदा? अगर हम लोग 3 साल या 4 साल हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, जिसमें 1 ऑनर्स पढ़ते थे और 2 हमारा सब्सिडरी सब्जेक्ट होता था. पर मैम, अभी मैं देख रही हूँ एज ए न्यू प्रोफेसर, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि अभी तो कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाया और अभी बच्चे ये लेके आ गए, वैक में ये लेके आ गए, मतलब बहुत सारे चेंजेस है मैम. तो इससे बच्चों को क्या बेनिफिट होने वाला है? I mean, मतलब पूरा नेशन कंफ्यूजन में है. पूरा नेशन कंफ्यूजन में. I mean, सर, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ. एब्सोल्युटली सर.
ऐसा है मैम कोई काम शुरू सब्जेक्ट होता है अपनी ना, चॉइस का भी नहीं मिल रहा है मैम, सब्जेक्ट देखिए अपनी कोई चॉइस का काम भी नहीं मिल शुरू रहा होता है, है इसी तो वजह थोड़ा है। कंफ्यूजन रहता है, लेकिन सब क्लियरिटी हो जाएगी। इंस्टीट्यूशन पे भी चॉइसेस हैं कि आप इन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इनसे करिए, और सब्जेक्ट वाइज आप मेजर और माइनर डिसाइड करिए, और बहुत ज्यादा अदला बदली नहीं होगी, मैम वो अगर भी एक दायरे में ही होगी। तो आप Excuse me, परेशान ना हो। आप लोग ये इनिशिएटिव्स जब आगे लिए गए हैं, ये आगे चल के क्लियर होते चले जाएंगे। कोई भी घर बनाते हैं बड़े परेशान होते हैं, किचन कहाँ रखें, ड्राइंग रूम कहाँ रखें, और जब बन के तैयार होने लगता है सब क्लियरिटी आ जाती है। तो टेक द Excuse me. इनिशिएटिव्स एंड कोलैबोरेट द इंस्टीट्यूशन इन प्रिपरेशन ऑफ दिस बिल्डिंग, दैट इज द न्यू बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइनिंग। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। बनाने में थोड़ा और मेहनत करने की Thank you. जरूरत थी। मैं एक एग्जांपल सिर्फ आपसे लूंगा। मैम एसी एक पेपर सेमेस्टर 1 में होता है जिसमें मेरे सब्जेक्ट से बच्चों को उर्दू गजल पढ़नी है। अब आप ये बताएं कि बच्चों को एक सेमेस्टर में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज पढ़ने को मिलेगा 80 70 80 डेज, उससे ज्यादा नहीं। अब 70 80 डेज के क्लास में पर डे आप उसको एसी पढ़ा नहीं रहे, हफ्ते में मुश्किल से 1 या 2 दिन एसी पढ़ा रहे हैं। अब उतने में आप पूरी उर्दू गजल उसको कहाँ से पढ़ा देंगे जो बच्चा उर्दू जानता भी नहीं है, जिसको जरा से भी इल्म नहीं है उर्दू का। तो ये बहुत अहम है मैम कि आप जो पढ़ाने के लिए बच्चों को बोल रहे हैं, या बच्चों को जिस चीज के लिए मजबूर करें कि आप ये पढ़िए, तो उनको उतना वक्त भी तो मिलना चाहिए कि वो उस चीज को समझ सकें। सिर्फ नंबर लेने मिलेगा। 80 सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, 4 5 यूनिट कर देते हैं बच्चों के लिए, उतना हो नहीं पाता है। मैम So मेरा you एक are क्वेश्चन है। interested? देखिए मैम, मेरा आप एक अपने question था। चैलेंजेस को लिखिए, लिखने के बाद आप अपनी अथॉरिटीज को दीजिए। यू आर स्टेक होल्डर्स ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड यू आर फ्री अथॉरिटीज हो रही है टू मैडम। गिव द सजेशंस आल्सो। अगर कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है जब आप भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है, तो उसके लिए अकाउंटेबल है हमारी अथॉरिटीज। ठीक है, तो अगर आप कुछ ऐसा है तो आप राइटिंग फॉर्म में आप लिख के दीजिए अपनी अथॉरिटीज को। इतना अगर आप विद्रोह या कहना चाहिए गुस्सा है, अथॉरिटी को तो वो लिख के मत देने सब पर अथॉरिटी उसको उल्टी कार्रवाई कर देती फॉर्म है। ऑफ उसमें रखिए। आप अपना राइटिंग करके अपने चैलेंजेस को दीजिए। मैम हाँ एक सर। क्वेश्चन था। मैडम मेरा हाँ, एक क्वेश्चन साहब है। और थे। डॉक्टर साहब आप पूछिए, हाँ बड़े देर से कह रहे हैं, आप बताइए। मैम मैं ये निकलेश जी एंड लास्ट हाँ। क्वेश्चन मनीष कुमार। ये 2 जी। सवाल के हाँ। बाद हम क्लोज करते हैं। मेरा एक जी, क्वेश्चन जी। था मैम, अभी हमारे यूपी में समर पोर्टल का काफी हाइक हाँ। मचा हुआ था, हाँ। उस पे डेटा वगैरह फीड कराए जा रहे थे। हम्म। तो मैं ये पूछना चाहता था, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर है और नंबर ऑफ क्लासेस किसी टीचर को 90 असाइंड है, तो नंबर ऑफ लेक्चर्स 90 लेने कंपलसरी हैं, कम भी ले सकता है, ज्यादा भी ले सकता है, इसका क्या नियम है? अगर मान लीजिए 90 से कम वो लेता है तो सिलेबस कवर नहीं होगा, तो उसके लिए बच्चे का क्रेडिट नहीं कंप्लीट होगा, उसको कौन कंप्लीट कराएगा? उसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए अभी तक का तो जो बात है, जितने लेक्चर है वो आपको लेने हैं, जितनी क्लासेस स्टूडेंट को कही गई है वो उसको करनी है। अगर कहीं पे कोई आ रही है चुनौती की भी वो नहीं कर पा रहा है या मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो वहाँ कोई एक्स्ट्रा क्लास लेके आप 90 को अगर नहीं कर पाए एक पॉइंट पे जाकर, तो आप उसको उसमें एडिशनल क्लासेस में चेंज करके या उसके डिफरेंट सेगमेंट्स बना के अपने लेक्चर्स को पूरा कर लीजिए। जो बात है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की है। मुझे तो ऐसा लगता है इस Yes. प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूं। मैम मैं So ये that's the reference big पूछा। सारी cooperation जिम्मेदारी from the टीचर्स your पर है। side. आप ये जान लें कि कॉलेजेस में हमें क्लर्क बना के रख दिया गया है। मैम, इंटरनल एग्जाम लेना है, मैं इंटरनल इस एग्जाम के reference में पूछ असेसमेंट रहा था करने हैं, कि- नंबर चढ़ाना है, क्या क्या करें टीचर्स आके। सरकार वही चाहती है, सरकार आपको नौकरी बनाना चाहती है, टीचर रहने नहीं देना चाहती है। लास्ट क्वेश्चन। नहीं, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए। चलिए और सवाल पूछिए, और सवाल। जी मैम, मैं मनीष कुमार सिंह। मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि अभी जो NEP 2020 है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल एजुकेशन पॉलिसी है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, एंड इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं। एक चैलेंजेस जो मैं पर्सनली ऑब्जर्व किया हूँ कि जैसे मास्टर्स की डिग्री में हम लोग जिस तरीके से स्पेशलिस्ट होते थे किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, वो स्पेशलाइजेशन हम अपने बच्चों को नहीं प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दिक्कत ये आती है कि हमारे समय में जैसे ग्रेजुएशन अगर हमने इकोनॉमिक्स से ऑनर्स करा है तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ सकते थे, ठीक है। अब चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि किसी भी स्ट्रीम के बच्चे आके इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब फॉर द एग्जाम्पल कोई सोशियोलॉजी से आ रहा है, कोई हिस्ट्री से आ रहा है, ऑब्वियस ही बात है एंट्रेंस क्वालिफाई कर गया, इस समय तो एडमिशन कम नंबर पे भी बहुत सारे हो जा रहे हैं,
लेकिन वो क्या है, जैसे इकोनॉमिक्स मास्टर्स में हम लोग जब पढ़ते थे तो ये टीचर एज्यूम करके पढ़ाता था कि ग्रेजुएशन में हमने मास्टर्स कर रखा है, बेसिक क्वालिफिकेशन मेरी है, तो हम लोग उस तरीके से ट्रीट किए जाते थे। अब स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर करके अगर टीचर पढ़ाता है तो बच्चे 2 दिन बाद आके बोलते हैं कि सर बेसिक से सर आप शुरू करिए, क्योंकि ये चीजें हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, नहीं कभी हम लोगों ने देखा या सुना है। मैम खास बहुत बड़ी करके समस्या है। टेक्निकल कोर्सेज जो हैं उसमें और ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं। सो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसका देखिए सोल्यूशन ये हो सकता है कि आपको अपने कंटेंट को बहुत ही तोड़ना पड़ेगा, ब्रोकन करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कोई बात कर रही थी करिकुलम डिजाइनिंग की और मैं डिजाइनिंग पे सीधे आ जाती तो आप परेशान हो जाते। मैंने आपको एक एक चीज बताई, करिकुलम क्या है, करिकुलम के कंपोनेंट्स क्या हैं, करिकुलम के कंपोनेंट्स को हम कैसे इलेबोरेट कर सकते हैं। तो आप लोगों की तरफ से कोई भी सवाल वहां से नहीं आया है। तो रीजन क्या है कि उसमें क्लैरिफिकेशन है। अगर आप अपने सब्जेक्ट को ब्रोकन कर दें छोटे छोटे यूनिट्स में और हर यूनिट का टेस्ट भी ले लें और उसको क्लैरिटी कर जाए तो शायद स्टूडेंट इतने परेशान नहीं होंगे। वो परेशान यूं है कि फंडामेंटल्स है नहीं उनके पास और कॉम्प्लेक्स नॉलेज है उनके पास, अब मैं कैसे पढूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू ब्रोकन योर कंटेंट इनटू स्मॉलर segments of knowledge, and each knowledge segment that is known as integrated that should be followed by certain kind of facts and information. अब मैं आपको एक नई चीज और बता दूं, जो हमारा प्रोग्राम टेक्स्ट होता है या हमारा ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग होती है उसमें यही है, वो आईसीटी बेस्ड होता है। आईसीटी बेस्ड कैसे होता है कि उसमें हम पूरे कंटेंट को तोड़ देते हैं और हर सेगमेंट को सप्लाई करते हैं स्टूडेंट में, जिसमें उसका सही आंसर और गलत आंसर भी लिखते जाते हैं। तो इससे क्या है कि उसको क्लियरिटी हो जाएगी और वो फिर आपसे इतना परेशान नहीं होगा। लेकिन प्रोग्राम बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो जरा सा मेहनत का काम है, आईसीटी पे होता है। तो अगर कहीं आप कर सकें इसको करके देखिए, नॉलेज को तोड़िए, ब्रोकन द नॉलेज इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स एंड प्रोवाइड दिस सेगमेंट्स अलोंग विद द राइट आंसर। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताइए। जी मैम, बच्चे का इंटरेस्ट का सब्जेक्ट माइनर में अगर सपोज वो लेना चाहता है पर हमारे पास सीट्स अवेलेबल नहीं है, मतलब क्योंकि सीट्स मिल रही हैं, लिमिटेड सीट्स हैं और मेरिट के हिसाब से दी जा रही हैं काउंसलिंग के टाइम पे, तो मैम उस केस में बताइए मैम, बच्चा अपना इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़ नहीं पा रहा है, माइनर में से जो लेना था वो ले नहीं पा रहा है, जस्ट बिकॉज के उसकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब मेरिट के बेसिस पे हो रहा है, तो मैम उस सीट केस बढ़ा में दीजिए भाई। देखिए ये सब तो इंस्टीट्यूशन के हाथ में होता है, सीट बढ़ाना बढ़ाना। अगर आप तो विदाउट इंटरेस्ट मैम माइनर पढ़ रहा है कि मैम हमें हमारा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं मिला, तो उस केस में फिर बच्चों के लिए प्रॉब्लम आ रही है मैम यहाँ पर, जहाँ सीट्स नहीं है, सीट नहीं है लिमिटेड तो सीट्स सीट हैं। बढ़ा दो, सीट बढ़ जाती है। सीट तो बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैम, मेरा इंस्टीट्यूशन के हाथ क्वेश्चन में है। है। बढ़ा दीजिए सीट को, उसमें क्या है। मैम मेरा क्वेश्चन है हाँ, कि आप नहीं बढ़ा जैसा सकते सीट को, लेकिन अथॉरिटी के थ्रू बढ़ाई जाएगी वो जी सीट। मैम, वो जी भी मैम, पूरा जी प्रोसेस मैम, होगा, बोर्ड से पास होगा, बोर्ड से जी पास मैम, होने के बाद एकेडमिक काउंसिल में जाएगा, फिर वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाएगा, तब उसका अप्रूवल होगा। तो अगर जी किसी मैम, सब्जेक्ट को ज्यादा बच्चे पकड़ते हैं तो यू मे जी राइट इट टू योर अथॉरिटी एंड इट जी, द सीट्स मे बी इंक्रीज, इट इज इन द हैंड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। नो ओके प्रॉब्लम, नो बिग थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं और हमने पढ़ा है कि करिकुलम इज द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस गेन्ड बाय द प्यूपिल इन द स्कूल, लेकिन कहीं कहीं किसी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि करिकुलम इज द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस गेन्ड इन एंड आउट ऑफ स्कूल बोथ। Then how can we say that curriculum is related to the experiences out of this, which is related to out of the school, experiences gained out of the school? अगर ये दोनों definition हम अलग अलग देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि there is no common accepted definition by the thinkers? हाँ, exactly. No common acceptable definition of curriculum. इसीलिए सारे अभी मैंने आपको जो डिफरेंट डेफिनेशंस दिखाई वो इसीलिए दिखाई कि कोई तो करिकुलम को इस तरह से कंसिडर कर रहा है, कोई इस तरह से कर रहा है, बट इन कॉमन जो हम सबको पढ़ के आता है वो क्या है कि टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट अ स्टूडेंट रिसीव इनसाइड द क्लासरूम, आउटसाइड द क्लासरूम, उसको हमने कहा है, इसीलिए हमने उसको इन लाइन्स में कहा है। ये भी
ये भी हमने उस सब में से एक सार निकाल के कहा है, एक जिस्ट निकाल के कहा है। थैंक यू। मैडम और एक सवाल ये था कि अभी जो करिकुलम में या फिर कोर कोर्सेस में या फिर न्यू कोर्सेज में जो साइंटिफिक टेम्पर, ये वैल्यू और एथिकल टेम्पर लाना है, या फिर वैल्यू बेस्ड कोर्सेज और एथिकल कोर्सेज अगर इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके सोर्स ऑफ कंटेंट क्या रहेंगे? मतलब अगर रिलीजियस से रहेंगे तो इंक्लूसिविटी का चैलेंज आएगा, या फिर वो बॉडी पे डिपेंड करेगा? नहीं, तो कैसे चलेगा? देखिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब होता है डूइंग द वर्क इन सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। अगर कोई काम को सिस्टमैटिक कर रहा है और बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी के साथ कर रहा है, ऑब्जेक्टिविटी के मतलब कि अपनी अपनी व्यूज नहीं दे रहे हैं, बट द सर्टिफाइड व्यूज वी हैव, तो वहाँ ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिविटी इज देयर, दैट नॉलेज कम्स अंडर द हेड ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट। फ्रेंड्स, आपका इंटरेक्टिव सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन नियरली आधे घंटे से चल रहा है। नाउ टाइम इज कमिंग टू एन एंड। आई रिक्वेस्ट सबिहा नसरीन यस सर टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स टू अपने हमनाम, ये नसरीन है और ये नासरीन है। मेरा एक जानना था, मेरा एक सवाल था मैम। नहीं, कल कंटिन्यू करते हैं, कल टुमारो विल कंटिन्यू। ओके सर। ओके सर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपके कंटिन्यू रहेंगे। आई एम सिटिंग ऑल थ्रू, ऑल 4 weeks I am sitting, so you can ask Yes, questions to me also. Okay, no problem. ओके सर। Thank you, sir. First of all, good morning to good afternoon, everyone. Thank you all for being here today. A big thank to our speaker, Professor Nasreen Sahiba, for the great talk. We really enjoyed it and learned a lot. Thank you for the team who helped plan and run this event. Everything went smoothly. And thank you to everyone who joined us. Your time and attention means a lot. We hope to see you again at our next event. Have a great day. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you. पंकज कुमार जी, आप सेशन क्लोज हो गए अभी।